एवरीवन एंड वेलकम टू दिल की बातें, जहां बातें दिल से दिल तक होती हैं। तो आज के एपिसोड में हम बहुत डीप बात करने वाले हैं कि हमें लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है हमारे पास, द लाइफ जो हमें लोग सोसाइटी कहती है, बट स्टिल देयर इज समथिंग मिसिंग, कुछ ना कुछ मिस हो रहा होता है। तो ऐसा क्या है जो लाइफ में मिस हो रहा होता है? आज ये जानने के लिए वी हैव मीनल मैम विद अस। तो वेलकम मीनल मैम। Hi Drishti, how are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm doing great. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस आज पॉडकास्ट के लिए। वी आर एक्साइटेड Thank टू you. नो Thank you अबाउट। for inviting me. Thank you for joining. We are very excited to know about things जो society has her own way of telling us कि हमें कैसी लाइफस्टाइल जीनी है, कैसा जीना है। पर जब हम इन पॉइंट्स को भी टिक कर लेते हैं, उन चेस्ट लिस्ट को भी टिक कर लेते हैं, देन वी आर लाइक नहीं, कुछ मिसिंग है, अभी भी कुछ ना कुछ मिसिंग है। सो वी वांट टू यू शेयर योर स्टोरी कि हाउ इट स्टार्टेड विद यू, लाइक हाउ यू रियलाइज जो आपकी लाइफ है वो कैसे स्टिल मिसिंग एंड हाउ यू फाइंड इट आउट। Yeah, definitely. And I love to share my story, Drishti. So it is like a normal human being story, first of all, yeah, because the way we have been conditioned to believe कि पहले पढ़ाई कर लो, नौकरी ढूंढ लो, get married, have kids. So it is where society always tells us to achieve something and then you will feel fulfilled. Right. And that is what I was believing. And I started my journey. And especially Drishti for women, it is always for becoming a good girl. True. Correct. So the same thing I did. I completed my schooling, my graduation, my post graduation. Then I got a job. Then I got married. Then I became a mom. But at every stage, I was thinking, यार अभी तक तो वो complete खुशी मिली ही नहीं जैसे सब बोलते हैं. Then next stage, again I fell. Then I thought that career में आगे बढ़ के, so I tried there. Of course, monetary terms पे, position के terms में growth हुई. Still, there was the feeling that no, this is something where the world has told us that once you reach here, you will be successful, you will get everything, that fulfillment, contentment. बट वो अंदर से कभी फील ही नहीं हो रहा था Hmm. और कितना आगे जाना है. सो द वर्ल्ड इज कंप्लीटली इनटू द स्पेस ऑफ मेस्कुलाइन. और ऐसे ही हमारे साथ हो रहा था. जो सिस्टम्स बने हैं बस हम फॉलो करते रहते हैं. एंड फाइनली व्हेन आई वाज 36, I had a complete breakdown. My body was constantly trying to tell me, in fact, वो loudly बताना चाह रही थी कि there is something wrong inside you, Meenal. Right? And दृष्टि हम तब तक नहीं सुनते क्योंकि यहाँ पे बहुत आवाज है. Right? So it's very difficult to listen to your inner voice. But yes, universe and life has its own way to teach you the lessons. Right. Correct. So of course, like when you do too much, when you are super ambitious from inside, कि करना है, नाम कमाने हैं, सब कुछ करना है, and शायद इन सब से खुशी मिलेगी. तो मैं भी बस यही कर रही थी, and I landed up into the space of overthinking. Okay, I was completely like overdoing, overgiving, and overthinking. And Right. I'm sure Drishti आप भी एग्री करोगे कि मैक्सिमम women यही कर रही है. ओवरडू करती हैं, ओवरथिंक करती हैं, एंड ओवरगिव करती हैं. ये करते करते माय बॉडी स्टार्टेड गिविंग द सिम्टम्स ऑफ बर्पिंग. बर्पिंग मीन्स मैं दिन भर डकारे मारती थी. Hmm. नाउ इन इंडिया इट इज लाइक कि पेट में प्रॉब्लम है, सो हैव अजवाइन वाटर, हैव फेनल सीड वाटर, everything, have a proper routine. I did everything. Nothing was changing. So finally, after 8, 9 months, when everybody started noticing, and it was not like I'm just burping, it was like excessive. 24/7 मुझे burps आते थे. और समझ ये जरूर मुझे फील होता था कि इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम माई स्टमक, बट कहीं पे भी कभी भी अचानक जोर जोर से बर्पिंग स्टार्ट हो Hmm. जाता था. सो आई वेंट फॉर एंडोस्कोपी बिकॉज इट इज लाइक समथिंग रिलेटेड टू स्टमक. सो आई वेंट फॉर एंडोस्कोपी. Now, when I went for the endoscopy, the results were very shocking. A doctor told me that yes, you're suffering from anxiety, and उन्होंने मुझे 8 medicines पे डाल दिया. Now, when it comes to anxiety and endoscopy, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. I was really surprised. I said कि डकारें आ रही हैं and you're saying it's anxiety. Then he explained me that it is because of your nervous system. Right. Okay. You are ऑलवेज इन टू द स्पेस ऑफ ओवर थिंकिंग. जो मैं अब आपको बता रही हूँ ये मुझे खुद पे वर्क करने के बाद समझ में आया. डॉक्टर ने तो जस्ट इतना बोल दिया था कि आपका नर्वस सिस्टम और इम्यून सिस्टम है, इसलिए आप इतनी बर्पिंग कर रहे हो. एंड
ट्रस्ट मी, इवन आफ्टर ईटिंग 8 मेडिसिन कुछ नहीं बदल रहा था. एंड देन कोरोना केम. हम्म सब कुछ शट डाउन हो गया, तो मुझे भी वक्त मिला अपने साथ टाइम स्पेंड करने का. एंड व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग डीपर, आई रियली स्टार्टेड लिसनिंग टू माई सेल्फ. इट इज अ प्रोसेस. जब आप साइलेंस में बैठते हो, ध्यान लगाना शुरू करते हो, इट इज नॉट वन डे प्रोसेस. इट डेफिनेटली टेक्स टाइम. बट व्हेन आई स्टार्टेड दिस, आई थिंक माई नर्वस सिस्टम वॉज कमिंग आउट फ्रॉम सर्वाइवल मोड. वो हमेशा ओवर थिंकिंग के कारण सर्वाइवल मोड में रहता था, दैट इज फाइट एंड फ्लाइट मोड. मतलब पूरे टाइम मैं ही टेंशन में अपने बॉडी को सिग्नल्स भेजती रहती थी और नर्वस सिस्टम को कि कुछ गड़बड़ है. जब वो खुद शांत रहने लगा, रिलैक्स रहने लगी मेरी बॉडी, पता नहीं क्यों आफ्टर 4-5 months एवरीबडी स्टार्टेड नोटिसिंग, एंड स्पेशली माई स्पाउस स्टार्टेड नोटिसिंग कि तुम्हारी बर्ब्स कम हो गई हैं. हम्म And I was like, really? So he said yes. And then Drishti after 5-6 months तो वो completely चली गई. Okay, I medicines तो मैं इसके पहले ही रुक चुकी थी, क्योंकि मैं इतनी medicines खा के तंग आ चुकी थी. And हम्म trust me, it was not at all working. All acidic medicines, मतलब acidity को रोकने वाली medicines थी. हम्म ऐसा कोई specific नहीं थी. And 2020 नवंबर, आई रिमेम्बर, मार्च में लॉकडाउन लगा था. मैं मेडिटेशन कर रही थी एंड मुझे सडनली आइडिया आया कि जैसे देखो, लाइफ इज नॉट अ रॉकेट साइंस. इट इज अबाउट ऑब्जर्विंग यू एंड लर्निंग योर ओन जो भी लेसन है. सो मैं बैठी और मुझे एक आइडिया आया कि जैसे मैंने अपने आप को, और मैं ट्रस्ट में दृष्टि, तब तक मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि मैं अपने साथ क्या कर रही हूँ. सिर्फ शांति से बैठती थी. ओके, एक्सरसाइज करती थी, शांति से बैठती थी, बस दो चीजें. बट आई थॉट दैट अगर ये छोटे छोटे डेली रूटीन मेरी लाइफ को बदल सकते हैं, तो आई एम श्योर देर आर मेनी वुमेन हु आर स्ट्रगलिंग. सो लेट मी हेल्प देम विद दिस. So I shared this immediately after meditation to my husband, and he was like, मीनल कौन सुनेगा तुमको, या कौन विश्वास करेगा. एंड आई थॉट नहीं यार, बहुत सारी चीजें रहती है. हमें सिर्फ बोला गया एक अच्छी बहू बनो, अच्छी माँ बनो, अच्छी वाइफ बनो, बी अ गुड डॉटर. और ये सारे रोल्स प्ले करते करते कहीं ना कहीं दृष्टि वी फॉरगेट आवरसेल्फ. True. सो विद दिस स्मॉल स्मॉल प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल आई स्टार्टेड फाइंडिंग माई सेल्फ बैक. मुझे क्या अच्छा लगता था, मेरी बॉडी और मेरे माइंड को क्या रिलैक्स करता था. एंड फाइनली आई वॉज आउट फ्रॉम दैट एंजाइटी, एंड आई अंडरस्टूड नाउ द पावर ऑफ ब्रेथ. सो वेनेवर द स्टोरी, जो मैंने स्टोरी शेयर की, उसके साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमने सब कुछ ट्राई किया है. हम पढ़े लिखे हैं, हम जॉब्स करते हैं, इंटेलेक्चुअली हम कितना आगे बढ़ चुके हैं, Right. राइट, सब बहुत ज्यादा. बट इमोशनली एंड स्पिरिचुअली हम बहुत सारे लोग अभी भी वीक हैं. Right. बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं, बहुत जल्दी ओवर थिंकिंग के स्पेस पे आ जाते हैं. So this is my story which helped me to heal, and now I am helping others to heal. Wow. That is what I wanted to share. Wow. So as like you went your own process, like आपको भी एक कहीं ना कहीं physically एक जो body react करना start की, and that made you realize that कि शायद कुछ ना कुछ internally issue है जो बस Hmm. body बताने का try कर रही है. And Yes. that was an awakening point for in your life. But I have seen that nowadays how much diseases have been increased. Like almost हर किसी को कोई ना कोई problem है ही है. So like, do you think that every problem, like, or anyway, science is trying to prove this, but do you think that every problem that physically we are facing is something linked to the emotional part of us? Of course, yes, 110%. So, in fact, it like all the diseases which human body faces, it's psychosomatic, right? It is related to us, our mind. So, the most important thing is how you can make your mind your best friend. Hmm. सो दिस इज द प्रोसेस. ऑफ कोर्स पहले इतना साइंटिफिकली नहीं समझ आता था, एंड बहुत सारे लोगों को समझ नहीं भी आता. यू डोंट, एवरीबडी डजंट नीड टू गो डीपर इनटू द साइंस, बट जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो दिस एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ वन थॉट. करेक्ट. अगर आपने एक कोई छोटा सा थॉट आपके दिमाग में आया, एंड यू स्टार्टेड गिविंग इट एंड स्टार्टेड गिविंग एनर्जी टू दैट थॉट, धीरे धीरे आप फील करने लगोगे. सो इफ इट इज अ थॉट, एक नॉर्मल न्यूट्रल है कि नॉर्मल न्यूट्रल थॉट है कि चलो मेरा इंक्रीमेंट हुआ, बट अब उसके साथ साथ हम इमोशनल एनर्जीज देने लगेंगे, देन वी विल कम टू द फीलिंग, वी विल बी फीलिंग एक्साइटेड, हैप्पी. उस हिसाब से फिर हम एक्शन, बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन करेंगे. ये पूरा एक लूप होता है. Right. ऐसे ही एक थॉट आया कि यार मेरा इंक्रीमेंट नहीं हुआ,
वो थॉट नॉर्मल था, बट अब हम और थॉट्स देने लगे कि शायद दूसरे ज्यादा अच्छे थे, मैं अच्छी नहीं थी, वी स्टार्ट गिविंग मोर थॉट्स थॉट्स थॉट्स, एंड देन अगेन वो उस इमोशनल लूप में फंस के हम फील करने लगते हैं सैड, डिप्रेस्ड, अनवर्दी, और फिर वहां से हम डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन लेना शुरू करते हैं। तो हर किसी को ये चेक करना है दैट हाउ कैन यू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू योर एवरी थॉट, एंड क्या हर थॉट रिस्पॉन्ड के लायक है भी कि नहीं। हम्म। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो दिन भर बोलता ही रहेगा, द जॉब ऑफ द माइंड इज टू गिव प्रोड्यूस थॉट्स, so it was राइट। going to produce thought. So that's why Drishti is like, yes, everything is psychosomatic and it's very important to understand कि ये loop break कर देना चाहिए। राइट। कोई भी एक चीज ज्यादा दिमाग में चल रही है, you have to learn that there are several techniques to break that loop, और राइट। अगर आपने वो ब्रेक कर दिया तो you're good to go। Wow. So, like, there are ways to break the loop, but when we talk about the diseases, तो कोई ये नहीं मान पाता कि this is like हाँ। कि कहीं ना कहीं उनका linked brain से है। They are like, तुम पता नहीं क्या ही बोल रहे हो। But I am seeing it everywhere कि हर किसी को कोई ना कोई disease है, especially women. I don't know, like, I want to know from your side that why do you think that women are suffering a lot, like a deeper level of nowadays Yes. cancer have been increased in the women's like breast cancer or the vaginal cancer, but why it is happening a lot? या सो इट्स अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन दृष्टि। जो मैंने यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हम जिस तरह से कंडीशनड है बिलीव करने के लिए, हम बचपन से लेके अभी तक सिर्फ कर ही रहे हैं, वी आर जस्ट इन टू डूइंग स्टेट, हम्म। राइट। बट विमेन बॉडी इज अ बॉडी जो चीजें क्रिएट करती है। हम्म। आप इसको जो दोगे वो क्रिएट करके दे देगी, आप इसको स्ट्रेस दो, वो उसको भी मिक्स करके कुछ बीमारी क्रिएट करके दे देगी, आप इसको अच्छी चीजें दो, वो उतनी ही अच्छी अच्छी चीजें क्रिएट करके देगी। सो वी हैव वूम, वी हैव दैट इंटेलिजेंस। राइट। अब सबका माइंडसेट ही ऐसा करके रखा है दैट यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू गिव योर बेस्ट, कंपैरिजन बिकॉज ऑफ एजुकेशन सिस्टम हम्म। एंड द सोसाइटी। सो एक औरत अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती है द वे शी वॉन्ट्स, ओके। द हम्म। कोर स्टैंड्स विथ हाउ शी एक्सप्रेस हरसेल्फ टू द वर्ल्ड। सो जो एक वो स्ट्रॉन्ग वुमेन की डेफिनेशन है, बहुत ही पर्सनली, नो ऑफेंसेस टू एनीवन, बट मेरे लिए बहुत गलत डेफिनेशन है। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रॉन्ग वुमेन? क्या वो हमेशा एक फेक मास्क लेके खड़ी रहे कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ? हम्म। उसकी वजह से वो कितने इमोशन सप्रेस कर देती है, राइट। राइट। एंड व्हेन यू स्टार्ट सप्रेसिंग द इमोशन, बॉडी वो पेन को और इमोशंस को होल्ड करना शुरू कर देती है, correct? So every chakra is related to a few emotions, okay? And when you start suppressing it, वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में वो बीमारियां स्टार्ट कर देती है। राइट। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द women नीड्स टू लर्न हाउ टू एक्सप्रेस herself in a most creative and a beautiful manner। हमें कैसे एक्सप्रेस करना सिखाया आता है? नॉर्मली गुस्से से, रो के, फ्रस्ट्रेटेड, राइट। right? And then if there is nothing which is working out, silent treatment, हम्म। we stop talking to राइट। people, those who trigger us. So the best way is to understand कि yes, we are emotional beings and it's very important to release emotions. So yes, anger बिल्कुल आता है and we are human beings. ऐसा कोई नहीं होगा जिसको anger नहीं आता, but you have to learn how to acknowledge, how to process it and how to release it. तो body में मत रहने दो राइट। जो भी। एंड द बेस्ट थिंग, अगर आपको, जैसे आपने बोला आजकल बहुत कैंसर हो रहा है या एंशियस एंशियस, मैं हर वुमेन से मिलती हूँ, शी सेज यस मैं बहुत इजीली एंशियस हो जाती हूँ, एंड पैनिक अटैक्स तो लाइक बहुत ही नॉर्मल हो गया है। व्हेन आई वाज यंग, या हमने कभी ये वर्ड्स भी नहीं सुने थे, और आजकल जितने भी वुमेन से मैं अलाइनमेंट कॉल्स लेती हूँ, मैं हर सेकंड थर्ड वुमेन से यही बोल पूछ सुनती हूँ दैट यस मैम मुझे बहुत ज्यादा पैनिक अटैक्स आते हैं। So the question here is that we are unable to be calm and neutral. So the best thing is to learn, even if you're excited, even if you're sad, even if you're super happy, even if you are in grief, we have to learn to be neutral, वाओ। right? And we have to learn how we can release our emotions, not keeping it stuck in the body. क्योंकि राइट। वो निकलेंगे नहीं तो वो एक जगह जकड़ के बीमारियां बाहर आएंगी। That's it. राइट। And again, no offenses to any profession, but मेडिकल साइंस ऐसा ही है, वो इमोशंस पे फोकस ही नहीं करवाता, वो इसी पे आ जाता है। इट विल गिव यू ऑल द टेक्निकल एंड टर्मिनोलॉजीज की ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी है। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे लोग हीलिंग्स के थ्रू भी अपने आप को ठीक कर रहे हैं यस। rather than medicines.
ऑफ कोर्स जो काम डॉक्टर कर सकते हैं वो डॉक्टर ही करेंगे, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अपने लेवल पे हमारा जहां भी पेन स्टक है उसको रिलीज करें। राइट। एंड सबसे बड़ी पेन तो यही है, हार्ट ब्रेक्स। हम्म। जो मतलब वी women have a different definition of love and men have a different definition of love। तो हम लोग मतलब पूरी तरह से उस स्पेस में रह जाते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हम्म। मैंने तो सब इतना अच्छा किया था, why I am struggling। So it's okay. Life taught you the lesson, but learn to release all the emotions. And the life है ही इसलिए कि अपने emotions को काम और न्यूट्रल करके जीना सीखो, इसलिए हम्म। MS धोनी हमेशा यही बोलता है। The way you talk about heartbreak, I was there at one point and I हाँ। was saying the same thing कि मैंने तो सब किया, I did everything a relationship needed, but मेरे साथ ही बुरा क्यों हुआ? And it's not about you, Drishti. I have seen women in relationship with their spouse. So heartbreak doesn't means that just आपने फिजिकली एक दूसरे को छोड़ दिया। एक घर में रह के भी बहुत छोटी छोटी चीजों में हार्ट ब्रेक होते हैं। इफ यू टॉक अबाउट रिलेशनशिप ऑफ अ डॉटर इन लॉ एंड मम इन लॉ, वहां पे भी दिन भर इतने टॉन्ट्स एंड ट्रिगर्स है कि हम्म। टूटा हुआ रहता है True. दिल, राइट? सो अ woman needs to believe in herself and check her self-worth first। I think you bring a very important point over here, a relationship. कि why it is happening that I have seen कि women, the once she go in a relationship, वो खुद को down कर देती है. Like वो पूरा होगा focus सामने वाला इंसान बन जाता है. Like I was there at same point, and now when I see I myself, was like also there at same point. So for me, like my husband is was my boyfriend. So हाँ, दृष्टि मतलब वही हमारा फोकस हो जाते हैं। yeah, and वो हम सब भूल जाते हैं. So why this is happening? Like आपके according as a coach, what do you think? Like why this really happens with us, especially So women? Drishti, yeah. So Drishti, this I made it very clear in the beginning of the podcast only that we have been conditioned to believe कि जो love हम अंदर ढूंढ रहे हैं वो love कहीं बाहर है। Mm. राइट। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, बच्चा कुचा काम बॉलीवुड कर देता है, टीचिंग अस द डेफिनेशन ऑफ लव। लव is not something you can receive from someone, it is something which you have inside you, and once you start feeling that frequency inside you, you attract everything beautiful in your life। Right. करेक्ट। सो हमारे दिमाग में ये रहता है कि देर विल बी अ पर्सन कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड गिविंग अस दैट इम्पोर्टेंस, वैल्यू, एप्रिसिएशन, और हम बचपन से यही सुनते हुए आते हैं। True. बट वेन वी आर इन टू द रिलेशनशिप वी फील ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो Hmm. व्हाट कम्स इन द माइंड, शायद मेरे में ही कमी है, तो फिर हम और करते हैं। Right. राइट। अरे बोला गया था ना वहां से, तो अगर मुझे नहीं मिल रहा है मतलब मुझे शायद कुछ और अच्छे से बिहेव करना है और सुंदर दिखना है। आई हैव सीन वुमेन, वो सोचती है शायद मैं मोटी हूं इसलिए मैं रिसीव नहीं करी, तो दुबले होने पे लग जाती है। Hmm. राइट। सो वी आर कॉन्स्टेंटली चेजिंग फॉर दैट वैलिडेशन एंड अप्रूवल ऑल्सो फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। Right. और करेंगी और देंगी और खुद खोखले होते जाते हैं। ऐसा लगता है इतना दे रही हो फिर भी कुछ नहीं मिल रहा। द क्वेश्चन हियर इज, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू गिव, इट्स अबाउट you go deeper and check who you are। आप कुछ करो या ना करो, every woman deserves that love। True. Wow. Correct? क्योंकि she is a woman on this planet। Already Right. universe has blessed us with the most beautiful thing। पर yes, it's a conditioning and दृष्टि you will agree, हमारे मॉम हमारे ग्रैंड मॉम से भी हमने यही सीखा है that relationships are more important। and इसलिए when I meet women, and I would specifically speak this here. I want to bring this point. When I ask them कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए, मैक्सिमम वुमेन की फर्स्ट थ्री जो विशेस होती है वो उनसे रिलेटेड होती ही नहीं है। या तो Mhm. स्पाउस से, या तो किड्स से, या तो फैमिली से रिलेटेड होती है। या एंड आफ्टर दैट फोर्थ फिफ्थ उनके अपने ड्रीम्स होते होंगे। एंड इट्स नॉट अबाउट होम मेकर्स और वर्किंग वुमेन। आई हैव वर्क विद बोथ कैटेगरीज। बस फर्क ये रहता है, होम मेकर्स का ऐसा लगता है जब मैं कमाने लगूंगी तो सॉर्टेड हो जाएगा, और वर्किंग वुमेन उस स्टेज पे पहुंच चुकी है कि वो इतना कमा रही है जैसे मैं बहुत अच्छा कमाती थी बट स्टिल द सिचुएशंस वर नॉट गुड। सो Hmm. द क्वेश्चन हियर इज दैट वी हैव टू लर्न, वो जो लव है ना वो बाहर नहीं है, वो यहाँ है। एंड कीप योर डोर्स ओपन। हम इतने पेन में रहते हैं कि हम सारे दरवाजे ही शट डाउन कर देते हैं, एंड दैट इज नॉट एट ऑल लव, दैट इज जस्ट कंट्रोलिंग एंड कंडीशनिंग जो हम अपने Right. रिलेशनशिप्स में देखते हैं। करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने बोला कि हम हमेशा, हमें लगता है कि अगर एक्सटर्नल चीजें चेंज हो जाएंगी तो हम बेटर फील करने लग जाएंगे, बट इट्स लाइक इट्स वाइस वर्सा कि हमें इन
अंदर से स्टार्ट करना होगा कि हाउ वी आर फीलिंग. एंड दैट मेड मी टेक टू द पॉइंट ऑफ गुड गर्ल सिंड्रोम. लाइक आई एम लिसनिंग दिस थिंग अलॉट कि व्हेन आई सी द पैटर्न ऑफ माय ओन क्लाइंट्स और मुझे बात कर रही थी, तो आई रियलाइज दैट हमें कंडीशन ही ऐसा किया गया है कि वी आर मेंट टू थिंक अबाउट अदर्स पीपल. लाइक हमें खुद के ऊपर सोचने के लिए अलाउ ही नहीं है. एंड वी आर ऑलवेज इन द बाउंड्री ऑफ सेफ्टी कि हम ना एक लिमिटेड रह जाते हैं. So what do you think is according to you a good girl syndrome, and how from now onwards women can come out of it? Uh, good girl syndrome is again a pattern which makes you feel that uh, आपको दूसरे ये टैग देंगे, और इसलिए हम उस सेफर जोन में खेलते हैं कि ये बोलेंगे ये शी इज अ वेरी गुड वाइफ, शी इज अ वेरी गुड डॉटर, शी इज अ वेरी गुड डॉटर इन लॉ, एंड दैट टू when you achieve something. So ये बचपन से रहता है. When we are in school, our parents were like कि देखो वो थर्ड आ गई, वो सेकंड आ गई, वो फर्स्ट आ गई, या रिलेटिव्स आर लाइक दिस. सो एवरी टाइम पेरेंट्स, सोसाइटी एंड एजुकेशन सिस्टम इज इनटू जजमेंटल स्पेस. Hmm. तो हमें बचपन से ही अलाउड ही नहीं कर रहता है कि हम अपने वीकनेसेस को बाहर लाएं. Hmm. करेक्ट. बहुत छुपा के हम सेफ गेम खेलना चाहते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट वी डू नॉट हैव करेज टू से नो. Hmm. Because of that, we feel I am responsible to keep everyone happy. Correct? And third, very important, we always feel worthy when we get this compliments, appreciation from someone else. Oh, right. मतलब अगर किसी ने बोला कि दृष्टि मीनल तुम अच्छे हो, तभी हमें विश्वास होता है. हमें खुद पे विश्वास ही नहीं है कि हम अच्छे हैं. True. True. And when you talk about a good girl, the definition of good, like the tick marks, the checklist is also decided by the society. जो सर झुका के यस कर देती है, जो ओवर वर्क कर देती है, Hmm. राइट, जो कभी ना नहीं बोलती है. शी सप्रेस हर ओन इमोशंस एंड नीड्स बट शी इज ऑलवेज रेडी फॉर अदर्स. सो हम कितने ब्यूटिफुल गुड गर्ल सिंड्रोम के पीछे एक पपेट बन के रह गए हैं. True. And Drishti, I was surprised to listen this that I have also worked with thousands of women. ये कंडीशनिंग मूव रिमूव करने के लिए हमें महीने लग जाते हैं. True. Yes, you are also into one-on-one coaching and you have seen like it's such a deeper layer that उनका ऐसा like see when I ask women कि आपके सारे रोल्स हटा दो तो आप क्या बची हो, they cannot answer this question also because they feel that अरे ऐसे कैसे मीनल मैम आपने सारे रोल्स हटा दिए, सारे अचीवमेंट्स हटा दिए, तो फिर बचा क्या है मेरे पास. Hmm. सो हमने इतना उसको चेस किया है और इतना हम जजमेंट से बाहर निकले हैं कि हम वहां बहुत सेफ फील करते हैं, Right. जबकि वी ट्रबल आवरसेल्फ. बट इट इज सो मच सबकॉन्शियस नाउ कि हमें पता भी नहीं रहता है कि हम चेस कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं, लोगों के लिए खुद हम डोरमैट बन जाते हैं. True. वी अलाउ पीपल टू यूज अस but we don't know how to stop it. So good girl syndrome is since years where this patriarchy society को पता था कि women इधर है, उसको पूरा पलट के रख दिया. So no offense to any man, but it's very important to understand that women is really the most powerful being on the planet Right. because she's the creator. So किसी भी औरत को गुड गर्ल से बाहर निकालने के लिए खुद से लड़ाई करनी पड़ती है, True. क्योंकि यू हैव टू बिकम बैड इन समवंस डिक्शनरी टू लिव एन ऑथेंटिक लाइफ, नॉट गुड लाइफ. गुड एंड बैड से भी लाइफ बढ़कर है. Hmm. Right. But I think जो आप बता रहे हो that's true. But I have seen in my own home कि I was having this fight with my mom किसी बात के ऊपर, and she was like कि obviously आप जब लड़ते हो तो आपके माइंड में होता है कि आपको प्रूव करना है कि आप कैसे भाइयों के साथ बिहेव कर रहे हो और आप कैसे मेरे साथ बिहेव कर रहे हो. So I was telling my mom, I was like proving by some point, and she was like you know जो लड़के होते हैं दे आर बिल्ड ऑफ आयरन. तो आयरन को क्या होता है, तुम कहीं भी फेंक दो, कहीं भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट वुमेन आर मेड अप ऑफ गोल्ड. उनको गोल्ड सोना मानते हैं, तो हम सोने को कहाँ रखते हैं, तिजोरी में संभाल कर. सो आई वॉज एबल टू सी द कंडीशनिंग वी हैव बिन गिवन कि वो इतना अच्छे से प्लेटिंग किया हुआ है हमारे ऊपर कि यू आर लाइक ओ मुझे हर कोई गोल्ड मानता है, and इसलिए वो मुझे घर में सेफ रखना चाहते हैं. एंड So, Drishti, I completely understand from which space this is coming, but
द बेस्ट थिंग इज हियर, नो वन शुड फाइट, क्योंकि तुम अपना एनर्जी और टाइम बर्बाद कर हम्म। दोगी। बिकॉज उनके, वो अभी इतने अवेयर भी नहीं है कि वो इसको चेक कर सके। एंड व्हाट यू आर सेइंग, इट्स आई थिंक विद एवरी मॉम, लाइक आई एम 43, स्टिल अभी भी मेरी मम्मी को ऐसा रहता है। तो आप तो बहुत ही यंग हो, बट नाउ आई डोंट वेस्ट माई टाइम एंड एनर्जी टू प्रूव, बिकॉज सी, फॉर हर बिलीफ सिस्टम इज राइट। ट्रू। सो उनकी इतनी जिंदगी जा चुकी है, उनको जैसे जीना है। बट दृष्टि, इट्स वेरी ब्यूटिफुल दैट यू क्रिएट योर ओन स्टोरी, राइट, एंड लिव योर लाइफ विथ ऑथेंटिसिटी। और जिसको, जो दृष्टि से कनेक्ट होंगे उसकी ड्राइव और उसकी एनर्जी से, वो वहीं कनेक्ट होंगे। करेक्ट। सो ये भी एक ईगो है कि मैं राइट हूं। कोई राइट एंड रॉन्ग नहीं है। देखो, आंटी के अंदर जो सॉफ्टवेयर है मैं उससे आपको एक्सप्लेन कर रही हैं, आपके अंदर जो सॉफ्टवेयर है आप उससे बात कर रहे हो, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही।